अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम ग्रेड 7 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर देखेंगे। मेक श्योर करना है कि आपने तैयारी करते हुए इस क्वेश्चन पेपर को लाजमी रेफर करना है, क्योंकि इंशाल्लाह आपका मेजर पोर्शन पेपर का 90 to 95% इसी पेपर में से आएगा। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट objective parts. Question 1 is select personal pronouns in the sentence. They say that the action speaks louder than the words. Correct option D is say they. Question number 2 is choose the sentence with the correct use of an apostrophe to use to show possession. Correct option A है my parents' food is finished. Question number 3 है pick out the correct plural of sunflower. इसका correct option B है sunflowers. Question number 4 है choose a correct pair of homographs. Correct option D है tear and tear. Question number 5 है choose the prefix to make a new word of bearable un. Question number इसका correct option B है. Question number 6 है complete the sentence with the degree of the adjective this is dash road in the city longest. Correct option C है. Question number 7 है complete the sentence with the simple past tense Columbus dash America discovered. इसका करेक्ट ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग द साइलेंट लेटर बी. करेक्ट ऑप्शन इसका ए है. क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द हाउस स्मेल्स लाइक द ओशन ब्रीज. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है स्मेल्स. Question number 10 is select the adjective derived from the verb attract, attractive. Correct option A है. Question number 11 है change the following sentence into the present past perfect. The teacher explains the lesson to the students. Correct option B है. The teacher has explained the lesson to the students. Question number 12 है identify the sentence structure with the SVOC order. She gave me a gift. Correct option A है. Question number 13 है select the correct acronym number. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है. क्वेश्चन नंबर 14 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन. करेक्ट ऑप्शन सी है द टीचर सेड प्लीज फिनिश योर होमवर्क बाय फ्राइडे. क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट ऑप्शन सी है शी इज द बिगेस्ट एथलीट इन आवर कॉलेज. क्वेश्चन नंबर 16 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन डी है आई एम गोइंग टू लंडन सिटी. क्वेश्चन नंबर 17 है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ कैप्चर्ड. इसका करेक्ट ऑप्शन डी है कॉट. क्वेश्चन नंबर 18 आइडेंटिफाई द करेक्ट सिलेबस ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल. इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 3. क्वेश्चन नंबर 19 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सुल्तान हैज़ बीन डैश इन 1970 सिंस. करेक्ट ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 20 है चूज एन इम्परेटिव सेंटेंस. इसका करेक्ट ऑप्शन ए है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग. क्वेश्चन नंबर 21 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस. समझे इस बी रेप लाइक अ लाइन. करेक्ट ऑप्शन इसका डी है. क्वेश्चन नंबर 22 है सेलेक्ट द पेयर ऑफ होमोफोन्स. करेक्ट ऑप्शन इसका है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 23 है चूज द मीनिंग ऑफ दैट टास्क इज अ पीस ऑफ केक. करेक्ट ऑप्शन डी है इट is a very easy task to complete. Question number 24 है identify the declarative sentence. Correct option B है we are going to the park. Question number 25 है change the narration of the given sentence. She said I will call you tomorrow. Correct option B है she said that she would call me next day. Question number 26 है choose the meaning of given proverb. Never judge a book by its cover. इसका correct option B है don't give an opinion about someone based on outward appearance. Outward appearance. Question number 27 है choose the sentence that uses figure of speech. Correct option B है the stars winked at me from the sky. आपके पास पैराग्राफ इंस्ट्रक्शन है read the following poem carefully and answer the question given below. आपके पास एक पोएम गिवन है, आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, उनको पढ़ के आपने उनके आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है आइडेंटिफाई द लिटरेसी डिवाइस इज यूज इन द फॉलोअर्स ग्लो. फ्लावर्स ग्लो लीव्स विल स्वे. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी है. क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट हैपेंस टू द गार्डन व्हेन सन राइजेस. करेक्ट ऑप्शन ए है द गार्डन बिकम्स क्वाइट एंड काम. Question number 30 what suggests that garden is full of activity during the day. Correct option B है sounds of the bugs and bees. Question number 31 है हमारे पास what does the phrase their mystery the night will keep mean in the context of the poem. हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है द सीक्रेट ऑफ द गार्डन रिमेन्स हिडन इन द नाइट. आपके पास नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट है राइट अ डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंसेस बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड देयर डिस्कशन ऑन द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ 8th क्लास एंड देयर वॉइसेस. आपने एक डायलॉग लिखना है, मुकालमा लिखना है. क्वेश्चन नंबर 33 है
The given paragraph is full of errors. Write paragraph with correct pronunciation, punctuation, capitalization, spelling and grammar, etc. आपके पास एक पैराग्राफ है, इसको आपने करेक्ट करके लिखना है पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर, स्पेलिंग को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 है। रीड द गिवन माइंड मैप ऑफ and write a paragraph or 10 sentence importance of information technology, use correct grammar, punctuation and spelling। आपने इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें स्पेलिंग सारा कुछ आपके पास ठीक हो। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर था, इससे रिलेटेड आपके पास ये आंसर शीट है, इसमें आपके पास इंडिविजुअली ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का, 3 सो ऑन। आप इसको ऐसे सेपरेट याद करना चाह रहे हैं कि कोई याद कर ले, अदरवाइज क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन याद करना चाह रहे हैं तो वैसे भी याद कर सकते हैं। सो आपके पास आते हैं नेक्स्ट इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है। आपने क्वेश्चन एक पैराग्राफ था, उस मुकालमा लिखना था, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फातिमा और आमना के दरमियान। फातिमा कह रही है आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आवर 7th क्लास रिजल्ट इज गोइंग टू बी अनाउंस सून। आमना कह रही है यस आई एम आल्सो एक्साइटेड वी शैल बी इन क्लास 8 फ्रॉम दी कमिंग अप्रैल। तो ये आपके पास दोनों के दरमियान डायलॉग्स है। फातिमा इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल हैव टू चूज बिटवीन अरबिक एंड ड्राइंग। आमना आई एम going to choose Arabic. I want to improve my reciting skills. Fatma, good, but I have to basic knowledge of Arabic, so I will choose drawing. Amna, why are you choosing drawing? Fatma, I want to learn how to make sketches and drawing lines। तो ये आप उन दोनों के दरमियान जो है मुकालमा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है। ये आपके पास एक पैसेज गिवन था, उसमें आप वर्ड्स को देखेंगे कहाँ पे आप पंक्चुएशन यूज़ करेंगे, कहाँ पे कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे, तो सारी मिस्टेक्स आप उसको हाईलाइट करके करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 34 है। आपके पास वो एक टेबल गिवन था, उससे रिलेटेड आपने एक पैराग्राफ बनाना था जिसमें उन सारे वर्ड्स को यूज़ करना था। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू मैनेज प्रोसेस प्रोटेक्ट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। द कॉमन गोल बिटवीन दैम इज टू यूज़ टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हैंडल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, वीडियोस, ईमेल्स एंड सो ऑन। तो ये पैसेज आप यहाँ से एज इट इज़ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। Multimedia can stimulate the interest of the students. It empowers the students to speak the data utilizing a few unique media। आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। आपके पास आंसर फर्स्ट है नेट्स लाइक टू सिट ऑन माई हेड। आंसर 2 है ही लाइक्स टू प्ले ऑन माई मैच। और थर्ड है हमारे पास नेट्स लाइक टू रन ऑन माई बैट। क्वेश्चन नंबर 36 है लिसनिंग हिंट फॉर अच्छा मेन आपने यहाँ पैसे तक करना है। ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उसके आंसर्स की है। आपको स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।